गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्रयवतो गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्। Sai Ram. Moving forward with today's program, very happily we have amongst us Miss Rama Sampath Ma'am. Miss Rama Sampath is a postgraduate in commerce and has done her diploma in integrated programming and systems management. She is currently working as manager Human Resources Management Department. During her stint at Corporate Communications Department, the publications produced by her for NABARD, that is, Corporate Brochures, a publication entitled Simply Development, and the Coffee Table Book of NABARD have been conferred with the LACP, which stands for League of American Communication Professionals Awards in various categories during 2016, 2017, and 2018. She was one of the 11 students from India to, to do her diploma in the Sri Sathya Sai education from the Institute of Thailand. She was fortunate to receive this diploma from the divine hands. She is a Bal Vikas Guru, imparting non-formal education to children for 30 years now. She is a faculty member of the Institute of the Sri Sathya Sai Education, India, ever since its inception and editor of the Sri Sathya Sai Bal Vikas magazine, India. Apart from this, she is a great animal lover. We all must know her love for animals. She was featured on the Instagram page by the president of Jeevan Jyoti Pratishthan, who represents the voices of Andheri East, for feeding street animals, stray dogs, and cats in the streets of Mumbai every morning and evening, even during her lunch hours near her office. It is so inspiring for all of us, ma'am, that you are with us today. And the topic for today's morning is grace of God. I mean, it is, of course, the grace of God that we all have gathered here and going to learn more on this amazing topic. Ma'am, we all welcome you heartily and would love to seek your no- would love to seek your knowledge and would love to grow in the divine path. Over to you, ma'am. Thank you. Sairam. Om Shri Sai Ram. My most humble pranams at the lotus feet of Bhagwan Baba in all your hearts. ये भगवान की कृपा से ही मैं आज आपके सामने प्रस्तुत है भगवान की ये संदेश शेयर करने के लिए द ग्रेस ऑफ गॉड भगवान की कृपा व्हाट वी टॉक अबाउट दिस मुखम करोति वाचालम पंकुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तम अहम वंदे परमानंदम माधवम भगवान की कृपा से ही जो बोल नहीं पाता है जो गूंगा है वो भी बोल पाता है और ये ही भगवान की कृपा से जो चल नहीं पाता है वो एक पर्वत को भी पार कर सकते हैं और ऐसे ही भगवान की कृपा से मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं
और उसी की संदेश शेयर करने के लिए। द ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान की कृपा। और मैं जानना चाहती हूँ, पहला, आई वुड लव यू ऑल टू इंटरैक्ट, because I myself, I'm a Bal Vikas student, and because I'm a Bal Vikas student, in order to continue my learning, मेरा ये learning साधना ongoing process रखने के लिए ये बाल विकास गुरु बनना एक माध्यम है, क्योंकि बाल विकास गुरु हमेशा सीखते रहते हैं। और जिंदगी में हम लोग जब ओल्ड हो जाते हैं, जब हम सीखना बंद करते हैं, जब तक हम लोग सीखने के लिए तैयार हैं, तो हमें सदैव हम लोग जवान रहते हैं। सो आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू, अंडरस्टैंड फ्रॉम यू, कि भगवान की जो ग्रेस है, कृपा है, आपकी राय में ये कृपा कैसे मिलती है? Whoever would like to share their opinions can tell me. जैसे मैं क्लास में पूछती हूँ बच्चों को, मैं आपको भी पूछ रही हूँ, भगवान की कृपा हमें कैसे मिलता है, कैसा पाया जाता है भगवान की कृपा? Anybody wants to answer? Yes, this is Chandana who says, by serving parents हमको भगवान की कृपा मिलती है। Very nice, very nice. What else? Sairam ma'am. Saira ma'am. Yes, Sairam. Pragya is here. Yes. मैम, हम शुद्ध समर्पण से भगवान का कृपा पा सकते हैं। समर्पण से, हाँ, आत्म समर्पण से भगवान की कृपा पाया जाता है। वेरी गुड। एंड समबडी सेड बाय डूइंग गुड, अच्छा कर्म करने से भगवान का कृपा हम लोग पा सकते हैं। वेरी नाइस। आप लोग को बाय हेल्पिंग अदर्स, Debasmita, that is also very nice. By helping others also we get the grace of God. And by helping others, why do we help others? Why do we serve others? कि भगवान की कृपा जो है, भगवान की कृपा बहुत जरूरी है हम लोग को ये आत्मा ज्ञान पाने के लिए, या भगवान को हर सृष्टि में अनुभव करने के लिए हमको भगवान का कृपा बहुत जरूरी है। उसमें बिफोर वी गो इनटू व्हाट शंकरा सेज, आई वुड लाइक टू शेयर 2 थिंग्स विथ यू। भगवान ने जो बोला है, हम हमेशा वी हैव टू थैंक गॉड, भगवान को हमेशा हम लोग थैंक यू बोलना चाहिए। बाबा ने बोला है, हर बार हम लोग भगवान को थैंक यू बोलते हैं, तब भगवान का इमेंस ग्रेस, जो ग्रेस है, हमारे ओर आता है। क्यों? अगर हम लोग कंप्लेन करते रहेंगे हमेशा, हमारा जो स्थिति है, हम संतुष्ट नहीं है, हम कंप्लेन करते रहेंगे, भगवान से तो हम लोग पूछ सकते हैं, पूछना हमारा राइट है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग हम में है जो हम हमेशा, हम लोग संतुष्ट नहीं रहते हैं जो भी मिलता है, हम लोग हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, तभी हम लोग भूल जाते हैं जो भी कृपा हमारे ओर हम लोग को मिल रहा है। तो भगवान बाबा कहते हैं, हम जब भी भगवान को थैंक यू बोलते हैं, हमारा ग्रेस बढ़ जाता है। भगवान का जो ग्रेस है, गुरु और भगवान का जो ग्रेस है, बहुत मेनी टाइम्स इट गेट्स मल्टीप्लाई। तो हमारा प्रयत्न हमेशा रहना चाहिए, हम भगवान को जो भी चीज हमें मिला है, उसके लिए हम कभी भी भगवान को थैंक यू बोलने के लिए भूल नहीं जाने का। एंड सेकेंडली, ग्रेस तभी मिलता है हम लोग हमेशा सरेंडर करेंगे। सरेंडर तो बहुत, आत्मसमर्पण, सरेंडर तो बहुत, इट्स अ बिग वर्ड, बहुत बड़ा शब्द है। एंड वो कैसा आचरण में लाएंगे, वो ही हमें देखने का है। क्योंकि हम लोग बोल सकते हैं, हमने सरेंडर किया है, भगवान हमने सरेंडर किया है। तो एक बार ऐसे ही डिवोटी जाके भगवान को बोला, भगवान हमने आपको सब कुछ समर्पण किया है। तो बाबा ने बोला,
कैसे सब कुछ समर्पण किया है, जब आपके ही माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है। आप कैसे आपकी बॉडी, माइंड और आत्मा भगवान को समर्पण करेंगे? उसके लिए पहला हमारा जो माइंड है और इंद्रियास है, उनके ऊपर काबू पाना बहुत ही जरूरी है। When we master the mind, और ये सब हमारे काबू में रहता है, तभी हम लोग इसको अर्पण कर सकते हैं ना भगवान को, तभी हम लोग का आत्मसमर्पण होगा। एंड देन वी कैन गेट द ग्रेस ऑफ भगवान। ये जो ग्रेस है, ये जो कृपा है, ये मिलने के लिए आत्मसमर्पण क्या होता है अपनी जिंदगी में? आत्मसमर्पण एक सिंपल चीज है, मैं बोलती हूँ एक सिंपल फॉर्मूला है। ये हम लोग करने को प्रयत्न किया तो हम गारंटीड ग्रेस, मैं गारंटी करती हूँ भगवान का ग्रेस सदैव रहेगा। और ये क्या है? जो भी होता है हमारी जिंदगी में, वी विल एक्सेप्ट इट। ये भगवान की इच्छा है करके हम हमेशा मानेंगे। जो भी हमें हमारे साथ होता है, हम नहीं बोलेंगे भगवान ये अन्याय मेरे साथ क्यों हो रहा है, जो हमेशा हम लोग बोलते हैं, मैं भी बोलती हूँ। तो मैं तुरंत करेक्ट करती हूँ। पहला थॉट यही विचार आता है हमारे मन में, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये मैंने क्या बुरा किया, ये मेरे साथ, मैं इतना अच्छा चीज कर रही हूं फिर भी ये मेरे साथ क्या हो रहा है? दिस इज नॉट अ साइन ऑफ सरेंडर। ये भगवान का जो परीक्षा है हम लोग आगे क्लास में जाने के लिए। और जब भी आप ये प्रतिज्ञा लेंगे कि हम भगवान को कभी नहीं पूछेंगे, आप देखते रहो कितना परीक्षा आएगा आपकी ओर। क्योंकि जब से मैंने फैसला किया है भगवान मैं नहीं पूछूंगी आपसे कि ये क्यों हो रहा है, तो मैंने देखा है बहुत ही परीक्षा और बहुत ही डिफिकल्टीज हमारी जिंदगी में आ रहे हैं, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ उसके साथ भगवान के इमेंस ग्रेस 100% मिलता है। आई विल टेल यू अ स्मॉल एग्जाम्पल, ये तो बहुत वर्ल्डली एग्जाम्पल है। सुबह मैं उठती हूँ, हमेशा मेरा टाइमिंग कुछ ऐसा रहता है, मैं 3:15 को उठती हूँ। और मेरे साथ मेरी मम्मी है जो डिमेंशिया पेशेंट है, उसका अंडरस्टैंडिंग बहुत कम रहता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है, याद नहीं रहता है। फिर भी मैं बहुत संतुष्ट हूँ, वो अपने पैर पे चलती है, भगवान को याद करती है, मेरे साथ बात करती है, मैं संतुष्ट हूँ। और एक सुबह ऐसा हुआ कि अभी लास्ट वीक हुआ, मैं उठी और उठ के हम लोग, मम्मी और मैं हमेशा प्रार्थना साथ में करते हैं। तभी मम्मी ना आई और बोलने लगी, बेटा बहुत पानी जमा है, पूरा किचन में पानी जमा है और हमारे बेडरूम की ओर भी पानी आ रहा है। तो मैं एकदम आधा नींद में थी, मैं उठी और मैं एकदम फास्ट चली तो मैंने देखा पूरा पानी भरा था। और मैंने लाइट स्विच ऑन किया और देखा तो कहाँ से पानी आ रहा है मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मुझे इतना रोने को आया, आप मानेंगे नहीं, मुझे लगा कितना टाइम लगेगा मुझे ये सब पानी निकालने में। तो तभी मैंने देखा कि एक स्मॉल क्रैक, जो एक्वागार्ड का जो पाइप था, एक्वागार्ड का पाइप तो बहुत ही पतला है, उसमें से पानी वो फटके ओके पूरा किचन में पानी भरा हुआ था। तो पहला मेरा चिंता ये था, स्वामी ये मेरे साथ क्यों हुआ, व्हाई डिड दिस हैपन। तभी मैंने अपने आप को करेक्ट किया और मैंने बोला भगवान लाख लाख शुक्रिया भगवान, इतना पानी गिरते हुए भी मेरे मम्मी चल रही थी उधर ही, लेकिन वो गिर नहीं पड़ी। तो अगर गिर पड़ी तो क्या हालत होता था, क्योंकि मुझे खबर ही नहीं था। मम्मी मुझे बताने के लिए आई इतना पानी जमा है। तो मैंने बोला शुक्रिया भगवान, आई नो विथ योर हेल्प आई विल बी एबल टू रिमूव दिस वाटर। सो ये बहुत छोटा एग्जाम्पल है,
लेकिन ये बोलने के लिए कि हर एक इंसिडेंट जो होता है अपनी जिंदगी में ना, हम लोग उसमें ना पॉजिटिव साइड देखना चाहिए। अरे भगवान अच्छा हो गया, ये हुआ है और ये नहीं हुआ है। लेकिन मैं आपको यकीन से बोल सकती हूँ, पहला तो नेगेटिव ही आता है मन में, यही आता है ये क्यों हुआ है। बट दैट इज नॉट सरेंडर। सरेंडर इज व्हेन यू टेल भगवान, भगवान ये जो आया है वो आपके विश जरूर है इसमें, नहीं तो ये नहीं होता था, लेकिन आप ही मुझे ये शक्ति देंगे और आपकी कृपा से मैं ये समस्या को सॉल्व करेगी। सो लेट अस डू दिस। आज से हम लोग सब यही बोलेंगे, जो भी स्थिति है हम लोग पहला बोलेंगे, भगवान ये स्थिति जो आया है वो ठीक है, लेकिन आपकी कृपा से, आपकी कृपा के सामने कुछ भी नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। ऐसी चीज है जो कुछ भी नामुमकिन है, भगवान की दर्शन से, स्पर्शन से, संभाषण से ये कृपा मिलता है ना। हम लोग एक्सपीरियंस किया है भगवान की दर्शन से, स्पर्शन से और संभाषण से। और ये ही भगवान किधर है, ये ही भगवान, ये विष्णु कौन है? विश्वस्य अणु विष्णु, जो हरेक प्राणी में समा है, हर एक सृष्टि में समा है। तो ये तो हमारे साथ तो दर्शन रोज होता है, स्पर्शन रोज होता है और संभाषण रोज होता है। सुबह उठ के ये पक्षियों के मीठी मीठी ध्वनि हम लोग को सुनने को आता है, ये तो संभाषण है भगवान के साथ। तो जब भी हम लोग ये एटीट्यूड से चलेंगे ना, तो हमारे जिंदगी विल बी वेरी वेरी पीसफुल। एंड भगवान की सदैव ये कृपा रहेगा हमारे ओर। एंड दिस इज व्हाट हैपेंड इन द केस ऑफ शंकरा। शंकरा ने भजगोविंदम कंपोज किया, लेकिन शंकरा के साथ उनके सारे डिसाइपल्स ने कंट्रीब्यूट किया। और ये जो श्लोका हम लोग देख रहे हैं आज, भगवत गीता किंचित अतीता, ये वर्स को कंपोज किया आनंदा करके एक डिसाइपल ने। आनंद, उसका नाम तो आनंद था, लेकिन उसका बाकी डिसाइपल्स बहुत ये इसको मजाक उड़ाता था, क्योंकि बहुत डल था, उसको कुछ श्लोक बोलने के लिए इतना नहीं आता था। लेकिन उसका ना जिंदगी में एक ही लक्ष्य था, गुरु का सेवा करना। वो हमेशा शंकरा के साथ ही रहता था, हमेशा गुरु का दर्शन, गुरु का स्पर्शन, गुरु का संभाषण, गुरु का सेवा में लगा हुआ रहता था। और बाकी लोग उसको अपने अपने स्टडीज पे बिजी थे। उन लोग का था कि बहुत वी हैव टू बिकम वेरी ग्रेट लाइक शंकरा, वो लक्ष्य था। तो वो लोग अपना स्टडीज करते हैं, बहुत जरूरी है, लेकिन बेचारा ये कर नहीं पाता था। लेकिन जैसा भगवान, देखो ये मधुमक्खी रहता है, वो एकदम फूल के अंदर जो हनी है उसको पाता है। ऐसे ही ये जो भगवान की कृपा है, गुरु की कृपा है, ये आनंद को मिला, आनंद गिरी को मिला। और वो एकदम गुरु के अंदर, गुरु के हृदय के अंदर ये जो कृपा मिला है, उससे उसको ये ज्ञान मिला और he was able to compose ये वर्सेस। इसलिए ये वर्सेस को तोटका वर्सेस माना जाता है, और शंकरा ने आनंद गिरी का नाम रखा तोटकाचार्य। और ये वर्स में क्या बोलता है आनंद गिरी, और शंकरा ने क्या सवाल किया उनसे, ये देखेंगे हम। भगवत गीता किंचित अतीता, गंगा जललव कणिका पीता, सकृतपि येन मुरारी समर्च, क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। इसमें आनंद गिरी बोल रहा है, भगवत गीता, पहला ये लाइन लेंगे, भगवत गीता किंचित अतीता, यही मैं बोल रही थी जब ऑडियो निकल गया।
तो एक ही वर्स, भगवत गीता का एक ही वर्स आप लोग पढ़ के आचरण में लाएंगे, वो ही बहुत है। ऐसा नहीं है कि पूरा पढ़ने का है। ये तोटकाचार्य का कहने का मतलब था एक ही वर्स ले लो, लेकिन उसको आचरण में लाना बहुत बहुत जरूरी है। तो शंकरा पूछने लगा, एक ही वर्स पढ़ने का है? पूरा इतना है, 700 वर्सेस है उसमें, और वो पढ़ने का जरूरी नहीं है क्या? तभी वो शिष्य ने बताया, मेरे जैसे मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूं गुरु। अगर आप मुझे बोलेंगे ये पूरा भगवत गीता पढ़ने का है ना, मैं डर जाएगा। इसलिए मैं कह रही हूं, अगर हम लोग बोलेंगे कि एक वर्स ले लो और वो पढ़ के आप आचरण में लेके आना, तभी आप देख पाएंगे कि इसको एक वर्स पढ़ के उसको आचरण में लाया तो कितना गुरु का कृपा मिलेगा। तब हम लोग वी विल गेट इंस्पायर्ड कि और भी पढ़ने के लिए उत्साहित हो जाएंगे हम लोग, और जानने के लिए गीता के बारे में, और इसको और आचरण में लाने के लिए वी विल गेट इंस्पायर्ड, उत्साहित हो जाएंगे। भगवत गीता किंचित दीता गंगा चललिव कणिका पीता। अगर आपको प्यास लग रहा है, आप क्या करेंगे? थोड़ा पानी पिएंगे ना, या पूरा गंगा का पानी पिएंगे? तो ये शिष्य का कहना ये था कि अगर आपको ये तृष्णा है आत्मज्ञान पाने के लिए, भगवान का ये कृपा पाने के लिए, तो आपका जरूरी है कि आप थोड़ा थोड़ा सब कुछ आचरण में लेके आएंगे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऐसा नहीं है कि पूरा गंगा पिएंगे आप। गंगा जल जो है, भगवान ने कहा है गंगा इज द मोस्ट सेक्रेड, इतना पवित्र है, वो भगवान के चरण से खुद आए हैं। और इसको माना जाता है कि भूलोक में भगवान ने इसको नाम दिया गया है भागीरथी, और स्वर्ग में ये मंदाकिनी, एंड पाताल लोक में इसको बोला जाता है भोगवती। ये सारे 3 लोकों में प्रस्तुत है गंगा। लेकिन शंकरा ने पूछा, ये तीनों वर्ल्ड में प्रस्तुत है, लेकिन हमारे अंदर हम कैसे महसूस करेंगे ये गंगा को? इतना पवित्र गंगा से जो हमको ज्ञान मिलेगा, जो भगवान की कृपा मिलेगा, इसको पीने में ये हमारे अंदर हम कैसे महसूस करेंगे? तभी तोटकाचार्य ने बताया, ये स्वर्ग क्या है? ये स्वर्ग में जो मंदाकिनी के रूप में बह रही है ये गंगा, ये क्या है? जब आप लोग भगवान को हर सृष्टि में देखते हैं, तो आप स्वर्ग में रहते हैं। 100% आप स्वर्ग में रहते हैं। और जब आप सोचते हैं, नहीं, हम सृष्टि का परम क्रिएशन है और हम बाकी सब क्रिएशन से बिल्कुल अलग है, हम बहुत सुपीरियर है, यानी कि हम मानव होने के कारण हम बहुत सुपीरियर है, और बाकी सब जो सृष्टि है ना, तो हमसे बहुत अलग है, हम तो स्पेशल है। जब हम ये सोचेंगे, तभी हम लोग मृत्यु लोक में रहते हैं, यानी कि ये भूलोक में रहते हैं, हमारा लेवल वो रहता है, स्वर्ग में नहीं। और थर्ड, हम कैसे पाताल में रहते हैं? जब हम लोग बहुत सेल्फिश है और सिर्फ अपने आप के बारे में सोचते हैं, किसी और की चिंता नहीं रहता है, और किसी के वेलफेयर या किसी का हित के बारे में हम कभी नहीं सोचते हैं, तो हम लोग पाताल में रहते हैं। तो हम लोग एकदम दूर रहते हैं भगवान से, क्योंकि भगवान से जो जुड़ के रहने का मतलब क्या है? तो हम लोग हर एक सृष्टि से जुड़ के रहना, जिसको कॉस्मिक कनेक्टिविटी बोलते हैं। कॉस्मिक कनेक्टिविटी क्या है? ये पूरा जो भगवान का विराट स्वरूप देखा है आपने, कृष्णा का विराट स्वरूप देखा है, उसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको?
भगवान के मुंह से हर एक सब सृष्टि आ रहा है और भगवान के मुंह के अंदर ही जा रहा है। तो इसका मतलब है भगवान हर सृष्टि में है और भगवान के अंदर भी सब सृष्टि जमा हुआ है। भगवान से हम आते हैं और भगवान में ही जाना चाहिए हमें। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ विराट स्वरूप। कुछ साल पहले भगवान ने बोला, अरे हम आप डिवोटीज को सबको लेके जाएंगे एयरपोर्ट में और दिखाएंगे अपना विराट स्वरूप। विराट स्वरूप दिखाएंगे तो सब लोग जो डिवोटीज जमा हुआ था प्रशांति निलयम में, तो भगवान का कैंपस का सारे स्टूडेंट्स, सारे टीचर्स, सब लोग एयरपोर्ट में जमा हो गए। ठीक है, तभी भगवान का कार आने के लिए भी रास्ता नहीं है, ये आई हैव हर्ड दिस। एंड जब भगवान उधर पहुंचे, भगवान, सब लोग इंतजार किया और भगवान आपके गाड़ी के बाहर, कार के बाहर आके सबके ओर देखे आनंद में हो गए। He was in bliss एंड हाथ ऐसा करने लगे एंड बोलने लगे, सर्वथा पाणी पादम ईशावास्य इदम सर्वम। मीनिंग टू से, ये ही है भगवान का विराट स्वरूप। वो हर एक प्राणी को देखे भगवान संतुष्ट हुए और भगवान ये कहना चाहते थे, ये मैंने खुद सुना है भगवान के स्टूडेंट से, भगवान ये कहना चाहते थे कि मैं ये सब में समा है, यही मेरा विराट स्वरूप है। आप लोग ये मुंह खोलने का जरूरत नहीं है। अभी कलयुग में मैं मुंह खोलने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बोल रही हूं मैं हर प्राणी में हूं और ये ही विराट स्वरूप आप कभी कभी देख नहीं सकते, आप हर रोज देख रहे हैं विराट स्वरूप। विराट स्वरूप देखने के लिए एक अलग सा दिन या अलग सा टाइमिंग का जरूरत नहीं है। विराट स्वरूप हम लोग रोज देख पाते हैं और रोज महसूस पाते हैं और रोज इसका अनुभव लेते हैं, जब भी हम लोग समझते हैं भगवान हर प्राणी में है, हर सृष्टि में है, तभी हम लोग को ये भगवान का ग्रेस मिलेगा। भगवत गीता, मैंने फिर भी बोला है कि ये आचरण में लाने का कैसा, भगवान गिव्स इंपॉर्टेंस। सिर्फ हमारा साधना करना, सुबह उठ के हम लोग साधना करते हैं किसके लिए, वो हमेशा हम लोग, ये गोल है ना, हमेशा हमारे नजर के सामने रखने का है। हम लोग इतना सब कुछ करते हैं ना, फिर बीच में भूल जाते हैं, अरे हम लोग क्यों कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ये सब हम लोग करते हैं टाइम टेबल जैसा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक टाइम हम लोग जो साधना करते हैं, whether you do your prayers, whether you do your silent sitting करते हैं या सेवा करते हैं, नारायण सेवा करते हैं, जो भी सेवा करते हैं, हमेशा हमारा ये मकसद रहना चाहिए, हम लोग ये सब कुछ कर रहे हैं भगवान को अनुभव करने के लिए, ये आत्म ज्ञान पाने के लिए ही ये सब कुछ कर रहे हैं। प्रैक्टिस 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 भगवान बोलते थे। भगवान बोलते थे अगर आप बात करोगे, अगर आप बिना प्रैक्टिस करके, बाल विकास गुरुज को ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज था हमेशा भगवान का, अगर आप बोलेंगे अपने बच्चे को बिना प्रैक्टिस करके, उनके ऊपर कुछ भी असर नहीं रहेगा। एक बार भगवान ने हम लोगों को इंटरव्यू दिया, हम लोग प्री सेवा दल बच्चे लोग को लेके गए थे। भगवान ने बहुत दया करके हमारे और 2 इंटरव्यूज दिया। तभी वन ऑफ द गुरुज भगवान से पूछा, भगवान हम लोग ये परिवर्तन या ट्रांसफॉर्मेशन कैसे पाएंगे, ये बच्चे में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे ला पाएंगे हम। भगवान ने एक ही बहुत ही सिंपल आंसर दिया। भगवान ने बोला
पहला आपका काम है, आप इनको प्रेरणा देना चाहिए। कैसा प्रेरणा देना चाहिए? हमारे जो भी स्क्रिप्चर्स में जो भी सेंट्स है, जो भी भगवान है, इनका सबका कहानी आप तो जरूर बोलना चाहिए। हमारे देश के जो ग्रेट मैन है, बोलना चाहिए। सेकेंडली, ये जो चीज आप बोल रहे हो ना, जब भी हम राम की बात करते हैं, राम स्टूड फॉर धर्मा। अब एंटायर रामायण देखिए, एंटायर रामायण पढ़ के क्या फायदा है जब भी हम इसको आचरण में लेके नहीं आएंगे। राम एक आइडियल पुत्र था, एक आइडियल ब्रदर था, और एक आइडियल हस्बैंड था, और एक आइडियल राजा था, और एक आइडियल शिष्य था अपने गुरु का। तो ये पूरा धर्म जो है उसने जो निभाया है, जो बेटा होने का धर्म एक रहता है, जो पति होने का धर्म एक रहता है, जो राज्य धर्म एक रहता है, उस सब का पालन किया। तो वैसे ही हम लोग जब पालन करेंगे, जो प्रैक्टिस करेंगे, तभी हम में ये भगवान की ग्रेस जो मिलेगा। और भगवान की ग्रेस जो ये क्या है? भगवान की ग्रेस जो ये है, भगवान की जो एनर्जी है, जो शक्ति है, इन सिंपल वर्ड्स, भगवान की एनर्जी और शक्ति हम में ट्रांसफर होता है, और इसको ग्रेस माना जाता है। और भगवान की ये ग्रेस से हम लोग को सब कुछ मुमकिन हो जाता है। तो ये पाने के लिए हमें बहुत जरूरी है, हम जो भी स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, भगवत गीता है, ये हम लोग हमारा आचरण में लाए। सिंपल, आप एक जस्ट टेक वन थिंग। मैं हमेशा सच बोलूंगी। भगवान बोलते हैं आप हमेशा सच बोलते रहेंगे ना, तो आप जो भी बोलेंगे ना, जो एक दिन वो भी सत्य हो जाएगा। इसलिए ना हम बोलते हैं ना, भगवान का जो वचन है हमेशा सत्य वचन रहता है। तो वो ही भगवान ने बोला उस ये इंटरव्यू में कि आपको क्या टेंशन है किसी में परिवर्तन लाने में? आप सिर्फ ये जो चीज जो बोल रहे हैं आप आपके विद्यार्थी को, वो आपके आचरण में लाना चाहिए। तो अपने आप बच्चे लोग इंस्पायर हो जाएंगे, और तुरंत उनमें ये परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन परिवर्तन लाने के लिए टाइम है। वो बोला परिवर्तन मेरा काम है, आई विल लुक आफ्टर इट। आप आपका ड्यूटी करो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी चीज हम साधना कर रहे हैं उसका मतलब नहीं रहेगा अगर हम लोग इसको हमारे आचरण में नहीं लेके आएंगे। एंड वैसा ही है, मैंने जो बोला है कि भगवान को अनुभव करने के लिए, जैसा ये जो तृष्णा जो रहता है आत्मज्ञान पाने के लिए, हम लोग थोड़ा भी ज्ञान लिया भगवान का, ये थोड़ा भी गंगा जल हमको मिल जाता है ना, भगवान का ज्ञान मिल जाता है। भगवान का ज्ञान मिल जाता है हमको आगे बढ़ने के लिए। उसका मतलब नहीं है हम लोग बैठ जाएंगे भगवान का ज्ञान, तो हम लोग और उत्साहित होके, अरे इतने से मुझे ये सब करने को मिल रहा है, ये सब समझने को मिल रहा है, तो मैं और भगवान की कृपा मिला तो क्या क्या नहीं होगा मुझ में, ये सवाल उठना चाहिए हम में। तभी हम लोग को ये तृष्णा मिलेगा, ये भगवान का कृपा पाने के लिए। वो भी एक तृष्णा रहता है, हमें भगवान का कृपा मिलना चाहिए, कृपा मिलना चाहिए, कृपा मिलना चाहिए। और मैंने बोला है भगवान का कृपा मिलता है भगवान की स्पर्शन से, दर्शन से और संभाषण से। और मैंने आपको बोला भी था कि ये भगवान फिजिकल फॉर्म में रहने का जरूरत नहीं। देखो अभी फ्यूचर जनरेशंस जो है, जो भगवान को नहीं देखा है, वो हमसे कई गुण पावरफुल है। हम लोग तो भगवान को माने गए क्योंकि भगवान को हम लोग ने देखा है, भगवान के साथ उनके साथ संभाषण हुआ है।
लेकिन ये लोग देखो, भगवान को देखा नहीं है, भगवान के साथ संभाषण नहीं हुआ है, इसलिए ये बहुत जरूरी है हम लोग को बताने के लिए, हम लोग को पहला महसूस करने के लिए, ये असली दर्शन, स्पर्शन, संभाषण, ये पूरे सृष्टि में जो भगवान समा है उसको हम लोग अनुभव करेंगे ना, तो हमेशा 24 आवर्स आई कैन गारंटी भगवान का ये जो ग्रेस हमको मिलता रहेगा। और भगवान का संकल्प, भगवान बोलता है कि हमारा संकल्प है जो वज्र संकल्प है, तो मेरे संकल्प से ही आपको मुझे मेरा कृपा जरूर मिलेगा, आपका कृपा मुझे जरूर, मेरा कृपा आपको जरूर मिलेगा मेरा संकल्प से। तो हम हमारा साधना करते रहेंगे और ये सब चीज आचरण में लेके आएंगे, तभी भगवान का कृपा मिलेगा। और इसमें बोला गया है कि अगर आप विष्णु का पूजा करें, तभी आपका जो मृत्यु काल में ना यम के साथ कोई पंगा नहीं लेने का जरूरत नहीं, पंगा लेने का जरूरत नहीं है का मतलब है आप मृत्यु से कभी डरेंगे नहीं, क्योंकि आप हमेशा तैयार रहेंगे, ये मृत्यु फेस करने के लिए हम तैयार रहेंगे। और विष्णु, मैंने बोला, क्रियते तस्य यमेन न चर्चा सकृतपि येन मुरारी समर्च्य, मुरारी कौन है? विष्णु है। और ये विष्णु का हम पूजा तोड़ा भी करेंगे, यानी कि हम तोड़ा भी प्रयत्न करेंगे ये विष्णु को, ये मुरारी को अनुभव करने के लिए हर चीज में, तो हमें सुखी से होगा हमारा मृत्यु, हम लोग सुखी से जाएंगे भगवान के पास जिधर से हम लोग आए हैं। मृत्यु ऐसा कुछ डरने का चीज नहीं रहेगा, हमारा जो एंड रहेगा बहुत सुखी रहेगा। तो ये सब चीज हम करते रहेंगे तो भगवान का पूरा कृपा मिलेगा। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ भगवत गीता, किंचित अतीता गंगा जललव कणिका पीता सकृतपि येन मुरारी समर्च्य समर्थे तस्य यमेन न चर्चा। ये यम या ये मृत्यु के साथ कुछ हमारा भय नहीं रहेगा, इसका मतलब है हम तैयार रहेंगे भगवान का कृपा पाने के लिए और भगवान में एक होने के लिए हम तैयार रहेंगे। इसके लिए हम सिर्फ ये याद रखने का है, विश्वस्य अणु विष्णु। और ये जो चीज है, हम भगवान की ओर हमारा ध्यान कभी नहीं रहता है, क्योंकि हमारा हमेशा ध्यान रहता है संसार के ओर। दिस इज द नेक्स्ट वर्स, नलिनी दलगत चलम अति चललम। ये जो कमल के लीफ के ऊपर ये जो बूंद रहता है, पानी का बूंद, देखिए इधर से उधर भटकता रहता है ना, स्टेडी नहीं रहता है। तो भगवान आनंद गिरी या तोटकाचार्य यही बोलता है इसमें कि हमारा जीवन भी यही तरह से अनस्टेडी है, अनसर्टन है। मैं आपसे एक सवाल पूछने वाली हूं और इसके लिए मुझे जवाब चाहिए। हमारे जीवन में क्या निश्चित है? आपकी राय में क्या निश्चित जो चीज है हमारे जीवन में, क्या निश्चित है? आप मुझे बता पाएंगे? मृत्यु। मृत्यु निश्चित है। और मृत्यु निश्चित है, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। और बाकी सब अनिश्चित है ना। लेकिन ये मृत्यु भी तो अनिश्चित है ना, तो हमें मालूम नहीं, खबर नहीं रहता है ना कि कब होता है ये, वही बड़ी समस्या होता है। दुनिया में हम लोग सबके लिए तैयार रहते हैं। देखिए, वी प्लान आवर कैरियर, हम लोग कैरियर तो इतना सुंदर से प्लान करते हैं, हमारा एकेडमिक लाइफ, कैरियर, तो हमारा जो जीवन है, हमारा मैरिज, फैमिली लाइफ प्लान करते हैं, हमारा जो फिनेंस है, इन्वेस्टमेंट करना म्यूचुअल फंड में,
इतना प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट सब तैयार रखते हैं हम लोग। और इतना बड़ा चीज क्यों है? आप देखिए, जब भी ना आपकी मोबाइल में ना वो जो बीप आएगा ना कि आपका बैटरी कम है, आप तुरंत लग जाते हैं ना कि उसको रिवाइव करने के लिए क्या करते हैं? वी ट्राई टू चार्ज द बैटरी। अगर वी आर ट्रैवलिंग, हम लोग हमारा पावर बैंक लेते हैं। तो ऐसे छोटी चीज के लिए भी हम लोग तैयारी इतना करते हैं। तो हम लोग कितना तैयारी करना चाहिए भगवान के कृपा मिलने के लिए और भगवान के पास पहुंचने के लिए। जस्ट इमेजिन, ये जो चीज है मोक्ष, ऐसा बोलता है ये मोक्ष के द्वारे में ना 2 गार्ड्स रहते हैं। अभी देखो, हम लोग कोई वीआईपी के साथ अपॉइंटमेंट लिया है, वीआईपी का दर्शन करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। फिर हम लोग जाते हैं, उधर आपको पूछा जाएगा आपका आईडी क्या है, आपने किसके साथ अपॉइंटमेंट लिया। पहला तो वॉचमैन आपको छोड़ेगा नहीं। तो यही चीज है, भगवान को हमारा जब फाइनली जब मिलन होगा, इसके लिए भी हमको हाउ टू प्रैक्टिस स्टेडीनेस। यस, I'm coming to it. I'm coming to it. In the last we will have question answer session. ये जो स्टेडीनेस है जिंदगी में, ये जो हम लोग ये बूंद की तरफ इधर उधर भटकते रहते हैं, क्यों? Why are we doing it? हम लोग कभी देखा है? क्योंकि हमारे डिटैचमेंट नहीं है। डिटैचमेंट किससे नहीं है? हमारा पूरा अटैचमेंट है संसार में रहते हैं हम लोग। जब हम लोग संसार से डिटैच हो जाएंगे, ये बोलना बहुत आसान है, आप सोचेंगे है ना, कि संसार से डिटैच होने मतलब इतना बड़ी बात है। संसार से डिटैच हो जाएंगे कैसा? आप देखिए, यही कमल देखिए, कमल देखिए, कमल किधर रहता है? ये तालाब में रहता है, गंदे तालाब, गंदे मट्टी है ना, राइट, गंदे मट्टी है उधर। लेकिन आप कमल देखिए, कमल का फूल देखिए कितना सुंदर है। ओके, हम है ये कमल। ये संसार में रहते हुए भी हम लोग संसार के ये सब चीज को पार करके हम लोग वी हैव टू रिमेन, हमारा शुद्धता, वी हैव टू रिमेन प्योर। सो व्हेन वी आर प्योर, हम लोग को ये प्योरिटी पाया जाएगा, तब हम लोग का भगवान का ध्यान हमेशा रहता है। And how do we steady this mind? This mind, they say this mind is our enemy बोलते हैं। लेकिन कौन बोलता है mind is an enemy? जब वो चाबी को आप एक साइड टर्न करेंगे वो खुल जाता है ताला, और दूसरा साइड टर्न करेंगे वो लॉक हो जाता है ना। अगर आप बोलेंगे कि ये चाबी इट्स नॉट गुड, नहीं, इन द सेम वे हमारा माइंड को हम भगवान की ओर लेके जाएंगे, तभी हम लोग सफल होंगे। इस स्टेडी होने के लिए मैं आपको एक एक्सरसाइज बोलूंगी आज, जो आप करना चाहिए। ऐसा बोला जाता है कि साइंटिफिकली इट हैज बीन प्रूव्ड, ये भी जो भी चीज हम कर पा रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ आवर विल पावर। और ये विल पावर का शक्ति ब्रेन से होता है। ये दृढ़ निश्चयता जो होता है, विल पावर जो ब्रेन से होता है, कोई सेल से, उससे हमको ये मिलता है विल पावर। और ये विल पावर बढ़ाने के लिए हम कैसे कर सकते हैं? विल पावर बढ़ाने के लिए एक सिंपल चीज है। विल पावर बढ़ाने के लिए हम लोग जब साइलेंट सिटिंग में बैठेंगे, क्या होता है, हम लोग को ना सारा और कोई ध्यान आ जाता है या नहीं? तो ये सवाल, ये टाइम है हम लोग को हमारा विल पावर को ट्रेन करने के लिए। अभी देखिए, जो जिम में जाते हैं, जिम में जाते हैं, क्या करते हैं? अपना मसल्स बढ़ाने के लिए वो रेसिस्टेंट पावर बढ़ाते हैं, यानी कि वो वेट्स उठा के रेसिस्टेंट पावर बढ़ाते हैं। यानी कि ये जो हम लोग जब साइलेंट सिटिंग में बैठते हैं और हमारे मन हम लोग को कहीं और लेके जाता है, हम बोलना चाहिए हमारा मन को, नहीं बेटा उधर मत जाना, इधर उसको खींच के लेके आने का है भगवान के ओर।
दिस इज एक्सरसाइजिंग योर विल पावर। और ये चीज हम लोग एवरी एक्टिविटी ऑफ योर लाइफ, आपको ये सक्सेस मिलेगा जब भी आप ये विल पावर को एक्सरसाइज करेंगे। ये जो शक्ति, जो विल पावर का शक्ति है आपके अंदर, आप उसको अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे ना, वो तो शक्ति आपके अंदर है, भगवान की शक्ति है हमारे अंदर, लेकिन आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे ना, वो जैसा मसल्स ना ढीला हो जाता है, हम एक्सरसाइज नहीं किया तो वैसा वो भी ढीला हो जाता है, आप ढीला हो जाएंगे, स्टेडी नहीं रह पाएंगे, है ना। अगर आप जो करना चाहते हैं ना वो भूल जाते हैं आप, और कहीं और निकल जाते हैं। तो एक्सरसाइजिंग द विल पावर आप आज से करेंगे, वेदर इट इज फॉर 1 मिनट। आप सोचेंगे, आप ना हमेशा ना ऐसा नहीं सोचने का मैं ये नहीं सोचेगा, आप ऐसे नेगेटिव, तो जरूर आप वो नेगेटिविटी ही कर पाएंगे। आप आपका माइंड को एक पॉजिटिव चीज देना चाहिए। रोज सुबह उठ के मैं भगवान के चरण के ऊपर ध्यान करूंगी। तो अगर जब भी आपका मन इट टेक्स यू अवे, या आपका बॉडी यू फील स्लीपी, यू टेक इट अवे, आप जहां उठ के आप प्रयत्न करना चाहिए उसको फिर ध्यान को लेके आने का है। योर एक्सरसाइजिंग योर विल पावर, ये छोटी एक्सरसाइज है, लेकिन ये आप करते रहेंगे ना, आप देखेंगे इट हैज गॉट ग्रेट इम्पैक्ट। इसमें बहुत सारा आई डोंट हैव टाइम टू शेयर, लेकिन देयर वर लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड। जो भगवान जो बच्चे के सामने ना मिठाई रखा गया था वेस्ट में, और बच्चे को बोला गया आप लोग सिर्फ मिठाई को देखते रहेंगे और खाएंगे नहीं। अगर आप करेंगे ना ये 5 मिनट के लिए, आपको ये जो मिठाई है ना उससे डबल मिलेगा। कि ऐसा हुआ था कि जो बच्चे इसमें सफल हुए, जो खा नहीं पाते, आधा बच्चे तो खाए 99%, लेकिन फ्यू चिल्ड्रन जो नहीं खाए, ओके, उनको ना सिर्फ वो मिठाई मिला, उनका जो जिंदगी ना उनको ट्रैक किया, ऑब्जर्वेशन में रखा था। ये लोग ना जिंदगी में बहुत सफल हुए, क्योंकि हर एक बार उनके कैरियर, उनके फैमिली, हर एक बार वो अपना विल पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। अपना विल पावर को एक्सरसाइज करके हम लोग अपना मन को काबू में कर सकते हैं। और ये जो बुद्धि भगवान ने दिया है, हमको विवेक शक्ति दिया है, भगवान ने विवेक शक्ति दिया है, सिर्फ मनुष्य को दिया है विवेक शक्ति, बाकी एनिमल्स को नहीं है ये। सो इन दिस श्लोका स्टेडीनेस इज इंपॉर्टेंट। जैसे ये जो बिंदु है लटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं, हम ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इनमें एक खूबी देखिए, आपने देखा है ये बिंदु किधर से आता है? आपने कभी सोचा है वो जो पानी का बिंदु आता है, वो जो तालाब में जिधर कमल रहता है, और फिर वो जब गिरता है वो पानी में ही समर्पण होता है। यानी कि हम लोग भगवान से आते हैं, इसका पीछे का यही है कि हम लोग भगवान से आते हैं। ये जो बिंदु, हम बिंदु है, भगवान के बिंदु है, हमको भगवान के ओर जाने का है। लेकिन हमारा जीवन कैसा है? बोल रहा है कि ये आप जान लो, विधि, अंडरस्टैंड। आपका बहुत शोक है, फुल ऑफ सोरो, क्योंकि हम पीड़ित रहते हैं अपने दुख में, हम पीड़ित रहते हैं अपनी बैड हेल्थ में। आप तो अभी तो देखा ही जा रहा है, हमेशा हमारा ध्यान रहता है हमारे हेल्थ के, पीड़ित रहते हैं हम। और इसमें ना हमारा अभिमान, हमारा ईगो बहुत रहता है। इतना ईगो में हम लोग पीड़ित, वो भी एक बीमारी है, पीड़ित रहना, ठीक है। और भगवान ने, मुझे याद आ रहा है, भगवान ने ये इंटरव्यू में हमें पूछा गया, अरे लड़के लोग को पूछा गया हाउ डू यू प्ले फुटबॉल? तो सब बच्चे बोलने लगे भगवान हम लोग फुटबॉल को किक करते हैं। अच्छा, भगवान ने बोला किक करते हैं। अच्छा, और भगवान ने बोला फिर कैसे किक करते हैं? बॉल कैसा इधर उधर जाता है, बॉल कैसा जाता है? तो बच्चे लोग ने बोला बॉल के अंदर ना भगवान हवा है, ओके, इसलिए हम लोग ने किक किया तो इधर उधर जाता है। हाँ, भगवान ने बोला देख, बॉल के अंदर क्या है? हवा है। वो ही जब आपके अंदर ना इतना ईगो, अभिमान रहता है ना, पूरा दुनिया आपको किक करेंगे, लात मारेंगे। ईगो इज एजिंग गॉड आउट। और भगवान भी ना, हम क्या करेंगे ना, हम भगवान जो हमारे अंदर है उनको भी हम पुश कर रहे हैं बाहर।
ईगो इज एजिंग गॉड आउट। तो ये पूरा समस्या जो होता है, हम लोग सैड रहते हैं, प्रॉब्लम रहते हैं, इज बिकॉज ऑफ अटैचमेंट। यही मैं बोलने वाली थी, अटैचमेंट। हम लोग ये संसार में आते हैं, हम लोग को, हम ड्रामा में है, तो भगवान के सामने कितना ड्रामा किया है, और भगवान भी आके पूछते हैं, सब कैरेक्टर से बात करते हैं और पूछते हैं आप क्या हो, आप क्या हो। हम लोग बोलते हैं हम ये विष्णु है, हम ये। तो अगर ड्रामा होने के बाद ना हम लोग क्या करते हैं, अपना कॉस्ट्यूम निकाल के रखते हैं ना, राइट। तो हम नहीं बोलते हैं नहीं नहीं मैं विष्णु हूं। तो यही हो रहा है, ये पूरा दुनिया एक ड्रामा है जिसमें हम लोग को एक रोल दिया गया है, लेकिन हम इसमें ना इतना मोहित हो जाते हैं ना, इतना अटैचमेंट हो जाता है वो रोल के साथ। अरे नहीं मैं ये हूं, मैं इसका पिता हूं, मैं इसका बहन, वो पूरा हम लोग ना वो जो धर्म है वो निभाना बहुत जरूरी है। लेकिन अटैचमेंट जब होता है ना, जब हम सारा चीज करते हैं ना विदाउट थिंकिंग ऑफ गॉड, और हम लोग सोचते रहते हैं मुझे ये करने से ये मिलेगा, ये करने से ये मिलेगा, तो हम अटैचमेंट रहता है, और हम लोग को एक्सपेक्टेशन रहता है कि लाइफ से ना ये एक्सपेक्टेशन रहता है, ये मिलता है, ये मिलता है। लेकिन आप पूरा जो भी हमारा कर्म है ऐसा करना चाहिए कि हम लोग भगवान को याद करके भगवान को समर्पण करना चाहिए। हम बच्चे लोग को बोलते हैं इवन व्हेन यू आर प्लेइंग, you offer that to भगवान, you offer that to God, then it becomes surrender। हम जो भी करते हैं ना भगवान को सी प्रयत्न करना हमारा बहुत, हमारा ड्यूटी है। मैंने बोला ना, दो गार्ड रहता है मोक्ष के द्वारे में, एक तो है जो हमारा प्रयत्न करना, श्रम करना, और दूसरा है दम। दम क्या होता है? दम है हम लोग को हमारा पूरा इंद्रियों को काबू में रखने का है, तभी हम लोग हमारा ध्यान दुनिया से या ये जो संसार से लेके हम लोग भगवान को अर्पण कर सकते, पूरा ध्यान हम भगवान के ऊपर कर सकते when we cut ourselves from। लेकिन इसके लिए भगवान ने एक बहुत ब्यूटीफुल फॉर्मूला दिया है। भगवान ने बोला है hands in the society, head in the forest। ये क्या है? हैंड इन द सोसाइटी एंड हेड इन द फॉरेस्ट। ये है हम लोग का सेवा करना बहुत जरूरी है, भगवान का अनुभव करना ये सब सृष्टि में, राइट। एंड लेकिन हमारा जो हेड है ना पूरा डिटैच रहना चाहिए। किधर रहना चाहिए? फॉरेस्ट में, यानी कि फॉरेस्ट में जाने का ही नहीं, सिर्फ आपका हेड, यानी कि पूरा डिटैच रहना चाहिए, पूरा ध्यान में रहना चाहिए भगवान की ओर। इसलिए भगवान कहते हैं हेड इन द फॉरेस्ट एंड हैंड्स इन द सोसाइटी। वैसे भी ना पहले जमाने में ऋषि मुनि जाके दे यूज्ड टू डू पेनेंस, लेकिन अभी हमारा ये कलयुग में हमारा धर्म है, हम लोग ये दुनिया में रह के हमारा ये साधना करना चाहिए, यही असली परीक्षा है। हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते सब छोड़ के भाग जाएंगे, संसार छोड़ के भाग जाएंगे, उसका मतलब नहीं है। लेकिन हम हमेशा ये सब चीज करेंगे भगवान को याद करते हुए। जब हम लोग क्या सोचते हैं, एक बार हम लोग संसार में मोहित हो जाते हैं, अरे भगवान हम फंस गए हैं, हम बोल रहे हैं भगवान को हम फंस गए हैं, लेकिन भगवान बोलते हैं मैंने नहीं फंसाया, ये तुम चाहते थे इसलिए सब कुछ हुआ। देखो एक बंदर को देखो, बंदर को कैसे ट्रैप करते हैं वन में। वो लोग क्या करते हैं, एक पूरा मटका लेते हैं जिसका मटका का ना मुंह बहुत छोटा रहता है, ओके, और उसके अंदर ना सब मूंगफली सब नट्स सब डाल देते हैं उनका आहार। तो बंदर बहुत एकदम लालच में अपना हाथ डालता है अंदर और पूरा उठा लेता है, और वो जब हाथ निकालने को कोशिश करता है ना बाहर, निकाल नहीं पाता है क्योंकि वो इतना नैरो है। पहला हाथ कैसा अंदर था, उसका हाथ खाली था इसलिए हाथ बाहर आया। अभी हाथ भरा हुआ है, वो क्या सोचता है इसके मटके के अंदर कोई भूत है हमें जो पकड़ने के लिए कोशिश, इसलिए वो भागता रहता है वो मटका को लेकर। वैसे ही है हमारे हालत, हम लोग पूरा दुनिया में हाथ डालते हैं, ओके, और पूरे हमारे फैला हुआ है हमारा जड़ दुनिया में, संसार में, और हम बोलते हैं भगवान बचा लो, हमारा बोझ
निकालो। तो इसके सल्यूशन हमारे हाथ में है। और भगवान ने एक बार, ये तो आप सुनना चाहिए, भगवान ने जब फैसला कर रहे थे सृष्टि को कितना साल दिएंगे जीने के लिए, उन्होंने फैसला किया था मनुष्य के लिए सिर्फ 30 साल देंगे, 30 इयर्स। ओके, तो मनुष्य ना बहुत निराश हो गए थे, संतुष्ट नहीं थे। ओके, उनका चेहरा से ही मालूम हो गया कि वो संतुष्ट नहीं थे। वो सोचा 30 साल में मैं क्या अनुभव करेगा इतना बड़ा दुनिया को। लेकिन भगवान ने बोला तुम राजा बनेगा, तुम सबसे बड़ा क्रिएशन होगा। वो सोचा क्या फायदा 30 साल में। फिर भगवान ने गधे को ओर देखा और बोला बेटा तुम्हारे लिए 50 साल, लेकिन ना तुम्हारा जिंदगी ना पूरा तुमको बोझ उठाना पड़ेगा, कठिन जिंदगी है। तब गधा ने बोला अरे भगवान दया करो, कृपा करो भगवान, हमें 50 साल नहीं चाहिए, 30 साल काफी है, ले लो आप भगवान 20 साल। तथास्तु बोला भगवान ने, और ये 20 साल मनुष्य बोला मुझे दे दो, मुझे दे दो, और मिला। और उसके बाद क्या हो गया, कुत्ता को भगवान ने बोला 40 साल आपको, आप तो हमारा आपका मास्टर का संपत्ति का आप पालन करेंगे, मास्टर के साथ हमेशा रहेंगे, उसका सुख और संपत्ति देखेंगे, उसका पालन करेंगे। तो कुत्ता ने बोला ये भी बहुत बुरी जिंदगी है, सबके और मुझे बात करके रहने का है, उनका संपत्ति को देखने का है, मुझे ना सिर्फ 20 साल बस है। अच्छा, तथास्तु भगवान ने बोला वो 20 साल भी मनुष्य ने ले लिया। ठीक है, फिर बंदर को बोला गया बंदर जैसा है, बंदर है वो स्टेडी नहीं रहता है। कोई पूछा मुझे कि व्हाट इज स्टेडीनेस। ओके, इधर उधर हम लोग क्या भटकते रहते हैं। ठीक है, और बंदर को देखकर कुछ भी ना मंकी फेस हम लोग बोलते हैं, ऐसा कार्टून फेस करता रहता है वो। ठीक है, तो बंदर को दिया गया है 60 साल। बंदर ने बोला भगवान दया करो प्रभु, मुझे 60 साल नहीं चाहिए, आप ले लो, मुझे 30 साल ले लो। ठीक है, यानी कि बंदर का 30, कुत्ता का 20 और गधा का 20, ये 70 इयर्स आया मनुष्य को। इसलिए बोला जाता है मनुष्य का पहला 30 इयर्स बहुत उसको लग रहा है हम राज्य कर रहे हैं, फिर 20 इयर्स बहुत ये सब संसार की बोझ में वो गधा जैसा रहता है, फिर वो क्या करता है अपना सब इन्वेस्टमेंट्स वो सब पालन करता है ना, ये इसको सब सुख संपत्ति को देखने में वो कुत्ता जैसा हो जाता है। और लास्ट में जब बुढ़ापे आ जाते हैं ना, उसका ये yes, I'm coming to you, I'm coming. Somebody is asking me, is it possible to be practically unattached? Yeah, we will see it. तो बंदर जैसा हो जाता है हम लोग बुढ़ापे में, तो हमारा पूरा जिंदगी चला जाता है। So this is what शंकरा meant। हमारा अगर डिटैचमेंट बहुत जरूरी है, अगर हम लोग डिटैच हो जाए। Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Loud and clear. Okay. So with this, we have seen how practically we can do these two shlokas which Shankara has explained to us. Now the questions coming up are, somebody has asked me, how is it possible to be practically detached from the world? Now, what is the meaning of detachment? अगर आप देखो डिटैचमेंट इन योर प्लेस ऑफ वर्क देखा जाते हैं क्या है। ओके, डिटैचमेंट कैसा होता है? प्लेस ऑफ वर्क में आप लोग हम आपका ड्यूटी करते हैं, राइट? यू गेट अ सैलरी फॉर इट, यस दैट इज योर राइट। ओके, बट लेकिन यू डू ऑल दिस वॉट एवर जो ड्यूटी है, आप ये सोच के हम अच्छे से करेंगे ना तो हमारा प्रमोशन मिल जाएगा, हमारा करियर बन जाएगा। ठीक है, तो फिर भी ना इसमें आपका अटैचमेंट रहता है। आप पूछेंगे इसमें क्या गलती है? नहीं, आप यही काम ऐसा करो ना, ये जो मैं कर रही हूं ना भगवान, द बॉस इज नॉट माई बॉस, यू आर माई बॉस। ये भगवान मैं आपके लिए अर्पण कर रही हूँ, ये जो भी होगा ना, आई एम ऑफरिंग ऑल आई एम डूइंग टू यू। तो जो होता है, मैंने बोला है पहला ही, when you remain detached, तो आपको क्या होता है ना, एक्सपेक्टेशन नहीं होता है। अगर आपको प्रमोशन मिलता है, नहीं मिलता है, फिर भी आप सोचेंगे, मैंने पहला क्या बोला, जो भी आपके जिंदगी, यही हमारा प्रयत्न है, जो भी आपके हमारे जिंदगी में होगा हम मान लेंगे वो दैट इज द विश ऑफ गॉड।
ये ही हमारा साधना होना चाहिए, डिटैचमेंट। इन ऑर्डर टू बिल्ड दिस डिटैचमेंट, तभी हम लोग को ये गुरु का कृपा, सी एवरीथिंग इज कनेक्टेड, दीज टू वर्सेस आर ब्यूटिफुली कनेक्टेड। ये डिटैचमेंट जब होता है तभी आपको सुख मिलेगा, तभी आपको भगवान की ग्रेस मिलेगा। और ये डिटैचमेंट जो चीज है, जब आप सब कुछ समर्पण करेंगे विदाउट निष्काम कर्मा, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, और आपको जो मिलता है उसका मतलब नहीं ना कि आपको, अगर आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं ना, वो सब नहीं मिलेगा। किसने बोला? जरूर मिलेगा, भगवान की ग्रेस से और मिलेगा। लेकिन अभी जब भी आप करते कुछ एक्सपेक्टेशन के साथ, वो आपका अटैचमेंट रहता है। जब सब चीज हम लोग निष्काम कर्म से करते हैं, एवरीथिंग इज द वर्क ऑफ गॉड। भगवान जो बोलते हैं ऐसे वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है, ये नारायण सेवा भगवान का काम है और ये भगवान का काम नहीं है। हर एक काम जो हम लोग करते हैं, जब भगवान को अर्पित करते हैं, वो भगवान का काम बन जाते हैं। दैट इज द वे टू बी प्रैक्टिकली डिटैच्ड। अटैचमेंट होता है, एक्सपेक्टेशन से ही अटैचमेंट होता है जिंदगी में। अगर मैं बोलती हूँ, क्यों, व्हाई एम आई अटैच्ड टू माय सन? बिकॉज आई नो जब ये बड़ा होगा ना, ये मुझे, ही विल लुक आफ्टर मी, ये सब चीज मेरे अंदर रहता है। यू डू नॉट नो, यू ट्राई एंड इंट्रोस्पेक्ट। अटैचमेंट रहता है, वो बहुत अच्छा रहना चाहिए, उसका करियर, ही हैज टू गो अब्रॉड। देखो कितना एक्सपेक्टेशन है आपका। व्हाई डोंट यू थिंक मैंने मेरा ड्यूटी किया है, अब जो भी होगा उसके साथ वो भगवान की प्लान के साथ होगा, भगवान की ग्रेस के साथ होगा, और मैं आई विल एक्सेप्ट इट। ये जो एक्सेप्टेंस है ना, मैं मान लेगी। हर कोई चीज मेरे ओर आएगा, मैं वो भगवान की कृपा है। मैं प्रश्न नहीं उठा पाऊंगी ये मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है। कांट यू सी दोनों में कितना कनेक्शन है, डिटैचमेंट में और ये भगवान की ग्रेस पाने में। दिस इज प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, दिस इज द वे वी कैन प्रैक्टिस। यही है भगवत गीता, किंचित अधिक इज नथिंग, यू हैव टू प्रैक्टिस इट। लेकिन आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे ना, उसको आपको वो ग्रेस जब मिलने लगेगा ना, आपको वो उसका मिलेगा। जब आप बच्चे को खिलाते हैं ना, पूरा वो भूखा है, सब कुछ नहीं खिलाते हैं, साथ में ना छोटा बच्चा को थोड़ा कुछ स्वीट, थोड़ा कुछ सॉफ्ट फूड खिलाएंगे, उसका वो टेस्ट मिलेगा ना, वो थोड़ा 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 और खाने लगेगा। दैट इज द वे वी शुड लीड लाइफ। एनी अदर क्वेश्चंस? Saira ma'am, we Yeah. can take questions once you are done with your talk. Yeah, I was told I should be finished by this time, that is 8:10 almost. And Definitely, ma'am. this is it. And if you have any questions, even the shloka, if you feel you have not understood, it is the life. हमारा जिंदगी जो है, ये बूंद, ये पानी की बूंद जैसा है, अनिश्चित है। एक ही चीज निश्चित है हमारी जिंदगी में, है अनिश्चितता। और हमारे जीवन में ये सब शोक है, सब हम लोग पीड़ित क्यों रहते हैं? पीड़ित दो चीज के रहते हैं, हमारी इल हेल्थ, हमारे जो बैड हेल्थ, और हमारी जो ईगो से हम लोग पीड़ित रहते हैं। और बैड हेल्थ के लिए वो ही, बैड हेल्थ कैसा बन जाता है? द ओनली वे टू गुड हेल्थ, इनको बोला जाता है साइकोसोमैटिक डिजीजेस। जो भी हमारे साथ जो डिजीज होते हैं साइकोसोमैटिक, जब एवरीथिंग इज टू डू विथ योर माइंड। सो वी कीप आवर माइंड, बॉडी एंड आत्मा प्योर। प्योरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तभी हम लोग ये एकता, यूनिटी, भगवान के साथ यूनिटी, ये महसूस कर पाएंगे। एंड दैट टाइम वी विल बी एबल टू सी प्योरिटी, यूनिटी, डिविनिटी। ये दिस इज दैवात्मिक, ये जो अनुभव है वो होगा। भगवान हमको कैसा बुलाते हैं? हाउ डज प्रेम स्वरूप लारा, एम्बॉडीमेंट्स ऑफ डिवाइन लव, एंड व्हाट एल्स, दैवात्मक स्वरूप लारा, एम्बॉडीमेंट्स ऑफ द डिवाइन आत्मा। कृष्ण ने क्या बोला? कृष्ण ने बोला पार्थ को, पश्य पार्थ, पश्य में पार्थ रूपानी, मेरा जो रूप है अनेक है, देखो अनेक रंग का है, अनेक रूप
शतशोथ सहस्त्रशः, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स से मेरा रूप, नाना विधानी दिव्यानी नाना वर्णाकृतिनी च, सब कुछ अलग है, सबका वर्ण अलग है, लेकिन सब में एक ही चीज कॉमन है, क्या है? नाना विधानी दिव्यानी नाना वर्णाकृतानि च, सब में क्या कॉमन है? एक दिव्य आत्मा जो है वो कॉमन है। That is what we need to experience। हमारा पूरा जिंदगी का मकसद, गोल, जो भी हम साधना कर रहे हैं, अगर सोचो मैंने कल एक मंदिर बनाया, ठीक है, मंदिर में मैंने भगवान का मूर्ति बिठाया और मेरा पूरा ध्यान रहता है मैंने कितना सुंदर मूर्ति बनाया, मैंने कितना सुंदर मंदिर बनाया, और मैं इतना मोहित हो गया है, मैंने बनाया, और वो जो मैं बोल रही हूँ, जब मूर्ति में ना भगवान का जो स्पिरिट कब आएगा, जब भगवान को आप महसूस करेंगे, आप मूर्ति को आप मूर्ति जैसा ट्रीट करेंगे ना, तो मैंने बनाया, देखो कितना कलर दिया है इसको, सो तो आप सिर्फ वो मूर्ति का रस ले रहे हो, भगवान का रस नहीं, तो वो भी मूर्ति बन के रहेगा। आप सोचेंगे अरे देखो मंदिर के ऊपर चिड़िया आके बैठ रहा है, कबूतर आके बैठ रहा है, गंदा कर रहा है मेरा मंदिर को, मैंने जो बनाया कलर निकल रहा है, तो हमारा पूरा ध्यान किधर है? हमारा जो मकसद था मूर्ति बिठाने का मकसद क्या है? भगवान को अनुभव करने के लिए ना। ओके, हमारा साधना का मकसद क्या है? भगवान को अनुभव करने के लिए। अगर ये नहीं होता है, पूरा साधना वेस्ट हो जाता है ना। हम सेवा में लगा हुआ रहते हैं, जैसा आनंद गिरी पूरा टाइम सेवा करता था शंकरा का, तभी उनको ये ग्रेस मिला। लेकिन जब वो सेवा करता था, वो अनुभव करता था भगवान का आत्मा को, वो एक्सपीरियंस, वो नहीं, सेवा नहीं किया बोलने के लिए मैं गुरु का सेवा किया ना, मैं बहुत एकदम इंटेलिजेंट हो जाएगा, ओके, मुझे सब कुछ मिलेगा, नहीं, उसने ऐसा नहीं सोचा, इसलिए उनके ऊपर ये कृपा हुआ, शंकरा का कृपा, भगवान का कृपा हुआ। साईराम। Sairam, साईराम। thank you so much, ma'am, for an amazing session that we just had. And there are a couple of questions that our participants have raised, and we would love to listen and answer from you. So the first question goes like, sometimes God tests us constantly. The crisis sometimes keeps repeating and does not seem to end. How to keep our faith intact and what should we do in this situation? Sairam. ओके, यस, भगवान हमारा परीक्षा हमेशा लेता रहता है, जैसा मैंने बोला था, नहीं तो हम लोग का आगे जाने का असंभव होता है, राइट। हाउ डू वी कीप आवर फेथ इंटैक्ट? मेरे बहुत सारे दोस्त हैं ना, मुझे बोलते रहते हैं, अरे रमा कि ना आई हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स ना, कि वो जब प्रॉब्लम आता है ना, आई कांट इवन प्रे, यू अंडरस्टैंड, आई कांट इवन प्रे, मुझे प्रार्थना करने, बिकॉज व्हेन आई सिट टू प्रे, ये प्रार्थना करने का टाइम मैं बैठती हूँ ना, ये समस्या ही मेरे सामने आता है। सो हाउ कैन यू कीप योर फेथ इंटैक्ट? हाउ कैन यू कीप योर फेथ इंटैक्ट? ये जो फेथ है इंटैक्ट करने के लिए ना, आपका साधना का बहुत जरूरी है इधर। ये साधना करने से ही हमारा फेथ बढ़ जाता है। अगर आप थोड़ा ढीलापन करेंगे, यू मिस योर साधना। ये सब क्यों दिया गया है आपको? भगवान का नाम लेना, बिकॉज इट मेक्स यू स्ट्रॉन्ग। ये फेथ को इंटैक्ट रहने के लिए आपका साथी बनता है आपका हर एक साधना। दैट इज द रीजन व्हाई वी हैव टू कीप डूइंग आवर साधना। और एक चीज बहुत अच्छा है, टू कीप योर फेथ इंटैक्ट। To keep your faith intact when you are in a crisis, आप ऐसी लोगों के बारे में सोचना चाहिए जो आपसे जो खराब स्थिति में थे, फिर भी वो लोग उससे जाग उठे, rising from the ashes। ऐसा है कि वो लोग कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते हैं जब हमारे साथ भगवान है? What is the meaning of faith? Faith is, आपको जब महसूस होते हैं ना कि भगवान हमेशा हमारा साथ है, तो परेशान होने का सवाल कैसा?
मैं बोलती हूँ मेरे बच्चे लोगों को, और हमारा प्रेयर सुबह में यही रहता है, मम्मी और मेरा, भगवान हम आपसे कुछ भी नहीं पूछते हैं, सिर्फ आप हमारे साथ रहो। आप जब भगवान आपके साथ है तो सारे शक्ति आपके साथ है, और जो भी मैंने बोला है, जो भी समस्या आएगा आपके सामने आएगा, आप फेस कर पाएंगे। लेकिन आप क्यों छोटे मन करते हैं? क्योंकि आपका माइंड स्टडी नहीं रहता है। आपका माइंड स्टडी नहीं रहता है। आपका माइंड ना आपको सुझाव देता रहता है, नहीं ये करो वो करो, एक तो आप एकदम कंफ्यूज्ड रहते हो, फोकस नहीं रहते। जब आप पूरा फोकस रहते हैं भगवान की ओर, कितना शांति मिलेगा। आप अपना आंख बंद करके बोलेंगे, भगवान, कभी कभी ना आपका क्राइसिस इतना बढ़ जाता है ना, डॉक्टर्स भी बोल दे टेल यू ये हमारे हाथ में नहीं है, भगवान के हाथ में है। तभी आप क्या करेंगे? बोलो, आप कुछ कर सकते हैं? नहीं। आप भगवान को प्रार्थना करेंगे, उसमें बहुत शांति मिलता है। भगवान, मैंने सब कुछ छोड़ दिया आपके हाथ के ऊपर, यू हैव टू हेल्प मी। तो ये भगवान बोलते हैं, जब गजेंद्र को जो एलिफेंट था, ओके, जो फंस गया था लेक में, उसको मगर ने पकड़ा, है ना, उसको मगर ने पकड़ा। तो भगवान बोलता है, ये गजेंद्र कुछ नहीं, हमारे जो मन में जो ये सब चीज है, जो अटैचमेंट, ये अटैचमेंट है, ये संसार की अटैचमेंट है, ये मगर। जब हम घूमते रहते हैं ये वन में, जैसा एलिफेंट घूमते रहते हैं, हमारा मन इधर उधर घूमता रहता है और संसार में मोहित होके हम लोग फंस जाते हैं ये मगर के। तभी गजेंद्र ने क्या किया? उसने ना बहुत कोशिश किया अपना स्ट्रेंथ दिखाने को, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जैसा हम करते हैं टू मीट आवर प्रॉब्लम्स, हम लोग बहुत सारा चीज करते रहते हैं, फिर फाइनली ना हम लोग एकदम कमजोर हो जाते हैं। तभी वो कमजोर हुआ, गजेंद्र ने प्रार्थना किया, विष्णु को प्रार्थना किया। विष्णु जो विश्वस्य अणु, जो भगवान सब में समा है, उसको प्रार्थना किया। तभी क्या क्या हम लोग सुना है? तो विष्णु आके अपना सुदर्शन चक्र छोड़ के उसको छुड़ाया। ये सुदर्शन चक्र भगवान बोलते हैं, हमारा साईं बोलते हैं, जब हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, जब हम लोग कमजोर होके, हमारा फेथ कमजोर हो जाता है, तभी हम भगवान की ओर देखते रहते हैं, तभी भगवान का सुदर्शन, भगवान हमारे ओर देखेगा। दैट इज सुदर्शन, and that will give us the strength to tackle our problems. So sadhana is very, very important to keep faith intact. Moving on to the second question. Can you please share few tips on how to exercise and build our willpower to keep ourselves steady? Absolutely. This is what I sent. You have to set yourselves target. या अगर आप बोलेंगे अपने आप को टारगेट रखेंगे, मैंने सिंपल चीज बोला था, अगर आप टारगेट उठेंगे कि मुझे सुबह जल्दी उठने का है, ठीक है, तो 1 दिन जाएगा, 2 दिन जाएगा, आप अलार्म को बंद करके सोते हैं, ठीक है, लेकिन फिर आप क्या हार मान जाते हो ना, आपका विल पावर को एक्सरसाइज नहीं करते हो। लेकिन एक चीज आप करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, प्रयत्न करते रहेंगे, एक दिन आप उठेंगे, ठीक है, चाहे 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद आप उठेंगे। आप उठने के बाद आप या आपकी एक्सरसाइज या आपकी प्रेयर करने को कोशिश करेंगे ना, उसमें जो अनुभव मिलेगा, पहला एटलीस्ट गिव योरसेल्फ अ चांस दे दो आप, वो उठने के बाद क्या फीलिंग होता है। तभी ना अगला दिन जब आपका मन करता है ना वो बंद करने को, आपका विल पावर बोलेगा नहीं, उसको खींच के लेकर है, नहीं आप उठेंगे, क्योंकि आपको वो आनंद का अनुभव लेने का। तो विल पावर है जो, इट इज अ प्रैक्टिस सेशन।
ये प्रैक्टिस सेशन हम जारी रखेंगे हर एक एक्टिविटी में। जो आप कर नहीं पाते हैं वो आप ले लेंगे, वो जो कर नहीं पाते हैं उसको ही आप उसके पीछे पड़े रहेंगे। डिटर्मिनेशन, स्वामी ने 5 Ds में डिटर्मिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये डिटर्मिनेशन जब रहेगा, पहला आपका जब पूरा आप समर्पण करेंगे भगवान को, दैट इज इंपॉर्टेंट। उसमें आप भगवान को आप अनुभव करेंगे हर हर सृष्टि में। फिर आप डिसिप्लिन लाएंगे अपने आप में। ये डिसिप्लिन इज नथिंग बट, आप कैसे डिसिप्लिन करेंगे हमारे माइंड सेंस ऑर्गन्स को, बाय द पावर ऑफ विल पावर। ये विल पावर को आगे बढ़ाने के लिए हमको एक्सरसाइज करने का है। जैसा आप डंबल उठा के आपका एक्सरसाइज करते हो मसल को, ये जो हमारा माइंड बोलता है नहीं हमसे नहीं होगा, आप बोलेंगे नहीं कैसा होगा, उसको खींच के वापस लेके आएंगे। यू ट्राई दिस। पहला आपको 1 मिनट कर पाएंगे आप जो भी कर नहीं सकते हैं, फिर आप उसको बढ़ाएंगे 2 मिनट कर पाएंगे। आप देखेंगे व्हेन यू कीप प्रैक्टिसिंग दिस विल पावर, आप उसको 25 क्या, आप उसको जितना टाइम को आप, क्योंकि आप काबू में है, ओके, यू आर इन कंट्रोल एंड देन यू विल बी एबल टू डू एनीथिंग। तो ये एक्सरसाइज विल पावर बढ़ाने के लिए है। एनी एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी आप लेंगे, वेदर इट इज साइलेंट सिटिंग और इवन वर्ल्डली एक्टिविटी जो भी लेंगे, मैंने बोला, तो उसके लिए जब आपको लगता है ना हम कर नहीं पा रहे हैं, आपको you have to tell yourself. Can you hear me? Sorry, somebody says not audible. Can you hear me? Ma'am, you're audible, ma'am. Absolutely. Okay. Okay. So willpower, हर एक एक्टिविटी में आप छोटा छोटा एक्टिविटी पहला लेने को कोशिश करो. Then you will be able to get control over your mind. What is it that comes between you and you not being able to do it? आपका ना मन बोलता है ना चलो बेटा और थोड़ा देर सो जाना, क्या रखा है ये सब साधना में, क्या रखा है एक्सरसाइज में, सुबह उठ के एक्सरसाइज करने का क्या जरूरत है, वॉक जाने में क्या जरूरत है, नहीं। दैट टाइम आपका जो विवेक शक्ति है ना, वो बुद्धि है जो सबसे आत्मा से मिलता है इसको सारा पावर, ओके, बुद्धि है जो वो विवेक शक्ति हेल्प्स यू टू डिस्क्रिमिनेट। नहीं बेटा हमको जरूर उठना जरूरी है, उठो। सो ऐसा करके ना आप हमारे आपके मन के ऊपर काबू पाएंगे, मन और इंद्रिय के ऊपर। दिस इज द एक्सरसाइज ऑफ बिल्डिंग विल पावर। यू हैव टू बिल्ड इट इन एवरी एक्टिविटी आप लेना चाहिए, तभी आप देखेंगे ना आप सब चीज कर पाएंगे, लेकिन स्टेडीली, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ऐसा नहीं कि ना आप पहले ही दिन आप 25 मिनट बैठ पाएंगे। यू हैव टू डू इट वेरी ग्रेजुअली, बट आप कर पाएंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Moving on to the next question. You have been a Bal Vikas student and a Bal Vikas guru. What has your journey been like? As a youth, how do we keep believing in learning and staying young? Okay, I have been a Bal Vikas student and I am a guru, and that is why I realized कि बाल विकास ये सेशंस होता है या जो भी सेशंस हम ले रहे हैं, ये तो एक मौका है हमारा ज्ञान भी बढ़ाने के लिए। सो हम when we are constantly open, हम लोग अपने आप को ओपन रखते हैं, लॉक नहीं करते हैं ना, ओपन रखते हैं। कुछ लोग हम में हैं, हम भी बहुत रिजिड रहते हैं ना, हमारी व्यूज में भी रिजिड, नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत रिजिड है, तो हम कभी सीख नहीं पाएंगे। रिजिड पीपल जो है ना, हमने जो बदलाव लाने का है, चेंज, ये जो चेंज हम देखना चाहते हैं बाहर हमारे अंदर में लाना चाहिए। कब होगा? जब वी आर विलिंग टू चेंज। ये तभी होगा वी कीप आवरसेल्व्स ओपन। ओपन टू व्हाट? ओपन टू द एंटायर सृष्टि में से हम लोग को लेसन्स मिलता रहता है। Every moment of our life, every person who comes into your life has a message for you. Every person who comes into your life, they say has a reason. वो थोड़ा टाइम रहता है फिर चला जाता है। क्यों? That was the plan of Bhagwan for you to understand certain things. Okay? So, if you keep yourselves open, receptive, अगर आप बाधा नहीं डालेंगे ना,
कुछ व्हाट यू से ऑब्स्टिकल्स नहीं डालेंगे तो हमेशा दिस सनलाइट, इफ आई कीप माय एंटायर विंडोज डोर्स शट, सनलाइट कैसा आएगा? सनलाइट तो है ना, बट फॉर मी टू लर्न, for me to get the sunlight, I have to keep myself open. So this is important for the youth. It's very important. Be flexible. Flexible का मतलब ये मत सोचो flexible का मतलब है कमजोर, मैं नहीं बोल रही हूँ. You have to be strong in your beliefs, strong in your conviction. This is very important. उसका मतलब नहीं है कि हम लोग कमजोर है. Okay. भारत ने किसी के और हमला नहीं किया है, उसका मतलब है भारत कमजोर है? नहीं है. अपना भारतीय कल्चर इज दैट वे सो स्ट्रॉन्ग बिकॉज स्वामी सेज इट इज बेस्ड ऑन स्पिरिचुअलिटी. एंड ये स्पिरिचुअलिटी क्या है? स्पिरिट ऑफ लव है जो हमेशा सदैव हर सृष्टि में है. तो इसलिए हमको हर एक चीज से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है. अगर हम लोग बाधा नहीं डालेंगे हम लोग सीख पाएंगे. सीखने से हमारा ग्रोथ हो जाता है. ठीक है, मेंटल ग्रोथ होता है, हम लोग आगे बढ़ेंगे और हमारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जिंदगी में अनुभव बढ़ेगा. एंड द ग्रेटेस्ट टीचर इज एक्सपीरियंस, isn't it? Unless we do something, the experience teaches you so many things in life. So you have to keep yourself open to learning. तभी हम लोग यू कैन स्टे यंग. द डे यू डिसाइड नहीं हम ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, जैसा कि आई डिसाइडेड व्हेन आई वाज टोल्ड कि आप हिंदी में बोलने को कोशिश करेंगे, तो मैंने जितना आई ट्राइड टॉकिंग इन हिंदी. पर मैं बोलूंगी नहीं मैं हिंदी में नहीं, तो ये तो भगवान का संदेश है, भगवान का प्रेम है हम जो बांट रहे हैं. हम लोग जब जो भी साधना करते हैं, स्टडी सर्कल, दिस इज अ टाइप ऑफ स्टडी सर्कल, वी आर शेयरिंग भगवान लव, भगवान का प्रेम को हम लोग शेयर करते हैं सभी के साथ. तो दैट इज इम्पोर्टेंट कि हम लोग हमेशा सीखने के लिए तैयार है, तब हम लोग यंग रहेंगे 100%. Thank you so much, Mom, for gracing the occasion by imparting the knowledge on grace of God. We truly learned so many things, and those things will certainly stay with us till eternity. तहे दिल से हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हम सबको एक साथ जोड़कर आपके ज्ञान के भंडार का एक अंश हमारे साथ बांटने के लिए. Thank you so much, ma'am. We wish you good health and happiness, and let your life be always about Swami. Thank you so much. పవిత్రాత్మ స్వరూపులైన విద్యార్థులారా, విద్యా బోధకులారా, విద్యాభిమానులారా, ఇది అంతై కూడాను మానవునిలో దివ్యత్వమైనటువంటి యొక్క ఆత్మ ప్రవాహమే ఈ గంగా ప్రవాహము అని. కనుక భారతదేశమునందు పవిత్రమైనటువంటి యొక్క గంగకును మానవుని హృదయమునందు నిష్కల్మషమైనటువంటి యొక్క సత్యభావములకు ఇది సన్నిహిత సంబంధం ఏర్పడినటువంటిది. కనుక భారతీయుని ధర్మము గంగా ప్రవాహం వంటిది. కనుక అట్టి గంగా ప్రవాహం వంటి అనగా మాలిన్యం పడక, అపవిత్రము కాక, చెడిపోక, నిత్య సత్య నిర్మలమైనటువంటి యొక్క ఆకారమును ధరించేటువంటి యొక్క స్వరూపమే భారతీయ ధర్మము. ఈ యొక్క లోకమునకు గంగా స్వరూపము లోపల దిగి వచ్చినటువంటిది. All this relates to the connection of man to divinity. In man, the Atma is flowing like a clear stream, in the same manner in which water is flowing as a clear stream in the river Ganges. It simply means that the Indian culture is such, and it has been flowing through people like water flows through Ganges, and maintains itself in a clean manner. It does not get sullied very easily. It does not get impure, and it flows permanently. That is how Indian culture has been flowing in the world, like the clear water of the Ganges river.
శంకరులు వారు అందించినటువంటి ఈ పవిత్రమైనటువంటి రత్నములలో స్వార్థరహితమైనటువంటిది. ఏ విధముగా అనగా గంగా ప్రవాహము తనకు తాను ఆరగించేటువంటి యొక్క ప్రయత్నానికి పూనుకోదు. మంచి ఫలవృక్షము తన ఫలములను ఆ వృక్షమే తాను ఆరగించడానికి పూనుకోదు. అదే విధముగానే మహనీయులైనటువంటి వారు వారి యొక్క సర్వశక్తులు కూడాను వారి నిమిత్తమై వినియోగపరచక లోక కళ్యాణ నిమిత్తమై త్యాగం చేసినటువంటి మహామూర్తులు. The verses that have been handed over to us by Shankara are clear in the sense that they are not at all selfish. How? The Ganges River, when it flows, it does not make any attempt to enjoy the sweet water that is flowing through itself. A good tree gives you fruits, but the tree never enjoys the fruits. In the same manner, all the great Maharshis and all the great people of this country have given us all their strength for the purpose of benefiting others. They have never utilized anything of their own capacity for their own benefit. समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। शान्ति शान्ति शान्तिः। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की।